all of you. So today we'll be starting medieval world. Now medieval world, it's a junction between ancient world and modern world. दोनों के बीच का टाइम है, ओके. एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत कोई सोचते हैं कि ओनली एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. मीडिएवल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ दैट ट्रांजिशन. वो जो चेंजेस आ रहा था, ठीक है, पुराने दुनिया में और नए दुनिया में, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है medieval world. So the objectives of this chapter is identify the medieval world as an important stage in the evolution of human being, describe the changes in political organization, military, socio-economic aspects, ठीक है. इवन इस्लाम जो धर्म था, it came during this time, okay, Islam religion. Then there were features of political organization, ऑल दैट, ठीक है. इंडियन इकोनॉमी, मीडिएवल इंडियन इकोनॉमी कैसा था, सो ये सब हम लोगों को जानने को मिलेगा इस चैप्टर के थ्रू. नाउ लेट्स कम टू व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ यूरोप इन मीडिएवल टाइम्स. यूरोप का क्या कंडीशन था. द मीडिएवल पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडल एजेस. As the name suggests, it refers to the period which succeeded the ancient period and came before the modern period. Success करना मीन्स क्या, succeed करना मतलब क्या, किसी चीज़ के बाद आना. तो मीडिएवल एज किसके बाद आया था, एंशियंट एज के बाद, राइट. सो एंशियंट पीरियड के बाद एंड मॉडर्न पीरियड के पहले. But was it only a middle age caught in between two great ages with no significance? Not really, since the medieval period constitutes an important stage in the evolution of human society that needs to be studied for its own interest. Means उसका अपना भी value है, okay, it holds immense importance on its own. What is more, the achievements and glories of the medieval period were also important steps toward the modern period. You may find it interesting to know that the term Middle Ages, just wait, I'll just write कर देते थोड़ा, हाँ, was coined by Europeans in the 17th century. तो कौन इस टर्म को कौन दिया था, मिडिल एजेस टर्म को? इट वॉज गिवन बाय द यूरोपियंस 17th century में, because they saw it as a long and dark period of interruption between the classical period of ancient Greek and Roman civilizations and their own modern age. तो जहाँ हम लोग यूरोप का बात करें तो बेसिकली ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, राइट. सो दे सॉ मिडिल एजेस एज अ ट्रांजिशन बिटवीन क्लासिकल पीरियड ऑफ बोथ दिस सिविलाइजेशन, रोमन ग्रीक का, और उसी का मॉडर्न एज में. तो ट्रांजिशन, वो चेंजेस वाला पीरियड है ये. However, the medieval period was not necessarily a dark period or an interruption. For the Islamic world, it was a period when a civilization flowered and reached the height of its glory. Islam जो था, it reached its height of glory during Middle Ages. In India, the medieval period was an age of synthesis. It was a fusion of old and new political, economic and social system. So synthesis, mixture, एक नया किस्म का फॉर्मेशन हुआ था, दोनों को मिला के, दोनों एज का एक बीच का जो हिस्सा है वो है ये. सो बिकॉज ऑफ दैट वी सॉ अ लॉट ऑफ न्यू political, economic and social systems also. Out of this fusion emerged a unique cultural pattern of coexistence and acceptance that became the hallmark of the medieval period of India. Even in Europe, the picture does not appear as gloomy as is sometimes thought. In the early part of the medieval period, the level of material and cultural accomplishment was no doubt somewhat low. However, during the later part of the Europeans greatly improved their standards of living. So medieval period का जब starting हुआ था, that time it was seen in parts of Europe that material accomplishment थोड़ा लो था लोगों का, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा घट गया था. बट इन द लेटर मीडिएवल एजेस ये चीज़ काफ़ी हद तक सुधर गया था. They also developed new institutions of learning and new modes of thoughts and reached very high standards in literature and art. In fact, the new ideas that emerged during this time not only transformed Europe but also had a deep impact on the rest of the world in the times to come. So काफ़ी सारी चीज़ में स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए थे, ठीक है. एंड वो डेवलपमेंट सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहे थे, वो पूरा दुनिया में फैला था.
लेट अस देन फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सबसे पहले क्या हुआ था कि रोमन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन किया था. ठीक है. We have read in the previous lesson about the strength and greatness of the Roman civilization. So, I already told you that it emerged as one of the most powerful world civilization. We also read how the Roman Empire had come to be divided into western and eastern territories. And क्योंकि वो बहुत बड़ा empire था, that's why it needed division so that it could be ruled properly. Okay, so it got divided into eastern and western territory. The western provinces had their capital in Rome and the easterns had their capital in Constantinople. So दो अलग अलग टेरिटरी बन गया था. वेस्टर्न प्रोविंस का कैपिटल रोम था और जहाँ ईस्टर्न का कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल. ये हम लोग रोम का बात कर रहे हैं. ठीक है. द रोमन एम्परर Constantine had set up the new capital of the eastern territories in the ancient Greek city of Byzantine in 330 AD. सो कॉन्स्टेंटाइन एक जो एम्परर आए बाद में, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल से चेंज करके बाइजेंटाइन को कैपिटल बना दिया था. इट केम टू बी नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल आफ्टर हिज नेम. ओके, नो, दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टेंटिनोपल ओनली. ही केम एंड ही गेव बाइजेंटाइन जो पहले था उसका नाम इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल रखा था अपने नाम के ऊपर. ठीक है. The Roman Empire continued to exist in the east for almost 1,000 years after it had collapsed in the west. So west वाला बहुत ही जल्दी डिक्लाइन हो गया था. उसके बाद ईस्ट वाला जो टेरिटरी था वो 1000 साल तक था. ठीक है. लेकिन वेस्ट तब तक डिसॉल्व हो गया था, नहीं था वो. It was known as Eastern Roman or the Byzantine Empire. This Eastern civilization of Greek-speaking people reached very high standards of economic and cultural life at a time when Western Europe was in relatively backward condition. So, वेस्टर्न तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, काफ़ी बैकवर्ड सिचुएशन था वो लोगों का. लेकिन ईस्टर्न सिविलाइजेशन ऑफ दीज ग्रीक स्पीकिंग पीपल, इट रीच्ड अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ. ठीक है. काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़ गया था ये लोगों का, बोथ इन इकोनॉमिक एज वेल एज इन कल्चरल एस्पेक्ट. और जहाँ की वेस्ट जो था वो बहुत ही बैकवर्ड कंडीशन में था. द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट केम टू एन एंड following attacks by various German tribes like Goths, Vandals, Visigoths and Franks. इन लोगों के अटैक से वेस्टर्न एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो गया. After overthrowing the Roman Emperor in the West in 476 AD, these invaders established separate successor states. तो जो कि पहले एक पूरा वेस्टर्न टेरिटरी हुआ करता था रोम का, अब इतने लोगों के इन्वेंशन के बाद तो राजा तो ओवरथ्रो हुआ ही, एंड साथ ही में इन लोगों ने जो था उसको छोटा छोटा टेरिटरीज में बांट दिया था रोम को. ठीक है. डिड हाँ ओके, सो दिस वन या हाँ, see this line, third line. In fact, Roman and Germanic societies came into close contact and merged with each other. As a result of this and the prevailing political and economic condition, a new type of society was born in Europe, with institutional systems that were quite different from either Roman or Germanic ones. तो क्या हुआ था कि ये रोमन टेरिटरी था, जर्मन्स ने इन्वेट करके इसको ले लिया था, बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने रोमन कल्चर, रोमन लिटरेचर बोलो, सोशल लाइफ बोलो, उन लोगों का जो भी बोलो, उसको पूरी तरह से मिटाया नहीं कि हाँ हम लोग ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो अभी इंडिया का कुछ भी कल्चर यहाँ फॉलो नहीं होगा, सब हम लोग लाएंगे, ऐसा नहीं था. ग्रीक्स लोगों जब वो उन्होंने रोमन में हमला करके रोमन को अपना टेरिटरी बनाया था, उस वक्त ये देखा गया कि एक नया किस्म का कल्चर बाहर आया, जो कि ना तुम पूरी तरह से ग्रीक कल्चर बोल सकते हो, ना ही तुम पूरी तरह से रोमन कल्चर बोल सकते हो. वो दोनों का एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव मिक्सचर बाहर आया था. ठीक है. सो इट वॉज वेरी न्यू एंड वेरी रिफ्रेशिंग एंड द पीपल दे डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑल्सो कि नहीं हम लोग ग्रीक है तो हम लोग रोमन एम्पायर को अपने तरह से बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था. ओके. सो कहीं ना कहीं रोमन कल्चर रह गया. फ्यूडालिज्म, सो यही तुम लोगों को मैंने बोला था कि इसके बारे में पता करो ये क्या है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम जो कि काफ़ी सालों तक हिस्ट्री में चला है, वर्ल्ड हिस्ट्री में. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इट. The successive states of the Germanic people in the West managed to restore political stability after the collapse of Roman Empire. So
किसी तरह जर्मन लोग जो जिन्होंने इन्वेट किया था, दे मैनेज टू रिस्टोर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी in the empire. In fact, one of these states managed to create a sizable empire under the famous king Charlemagne, which began to collapse after about mid 19th century under the impact of fresh waves of invasion. And even ग्रीक के जो इन्वेड किए थे तो उसमें एक राजा थे जिसका नाम था चार्लेमैग्ने, एंड ही was able to create a very साइजेबल एम्पायर अंडर हिमसेल्फ. ठीक है, काफ़ी सारा राज्यों को उन्होंने कवर किया था अपने अंडर में. उसके बाद मिड 19th सेंचुरी में वो कोलैप्स किया था. द रिजल्टिंग पॉलिटिकल क्योस लेड टू द एमर्जेंस ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर कॉल्ड फ्यूडालिज्म. तो जब ये जो थे शार्लेमैग्ने, ये जब ओवरथ्रो हुए थे, इसका एक रिजल्ट क्या हुआ, एक नया किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम बनना चालू हुआ. क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर हम लोग एक राजा को रखेंगे ना टॉप में, तो पूरा चांसेस है कि अगर कोई बाहर से इन्वेशन होता है और अगर वो राजा को किसी तरह मार देता है तो पूरा हम लोगों का जो स्टेट हम लोगों ने बनाया है वो गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, अब एक नया सिस्टम आना ज़रूरी है, और वही सिस्टम था फ्यूडालिज्म. इट वॉज अ हायरार्कियल और ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी. इस लाइन को प्लीज़ अंडरलाइन कर देना, ठीक है, या याद रखना, ये डेफिनेशन है फ्यूडालिज्म का. ये क्या होता है, एक हायरार्कियल ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन है. किस तरह से हम लोगों को रूल करना है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मीन्स कौन सबसे टॉप में है, उसके बाद कौन है, इस तरह से एक चेन बनाया है. ठीक है, दिस hierarchical structure can be understood easily. ठीक है, if we visualize a ladder or a flight of steps, at the top of the ladder stood the king. So सबसे टॉप में कौन थे इस सिस्टम का, वो थे king. Below him stood the big lords, जिनको हम लोग बोलते हैं dukes and earls. ठीक है, below these lords were a number of lesser lords known as the barons. So king हुए टॉप, king के बाद आया barons and dukes and earls, उसके बाद आए barons. ठीक है, और उसके बाद कौन थे, knights लोग थे. ठीक है, below these were the knights, who were perhaps the lowest category of lords. The lords derived their authority from and owned their loyalty to the lord above them and were known as the vassals of their lord. So लॉयल थे वो लोग अपने से जो जस्ट ऊपर में थे ना लॉर्ड. जैसे नाइट के लिए जस्ट ऊपर कौन है, बैरन्स है, तो नाइट अपना पूरा लॉयल्टी बैरन्स को देता था और बैरन्स अपना पूरा प्रोटेक्शन नाइट को. उसी तरह बैरन्स के लॉर्ड कौन थे, ड्यूक्स एंड अर्ल्स. सो इस तरह से एक वैसल सिस्टम था और वो लोग बोलते भी थे कि वी आर योर वैसल्स. ठीक है, एक नाइट एक राजा तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा, उसको पहले बैरन से बात करना पड़ेगा, बैरन को फिर ड्यूक से बात करना पड़ेगा, लाइक दैट. दिस पॉलिटिकल पावर वॉज वाइडली डिस्पर्स्ड unlike in the Roman Empire where it was concentrated mainly in the hands of king. This was the political aspect of feudalism. तो मैंने बताया कि एक किसी को पूरा पावर दे के वो गलती उन्होंने नहीं किया. ठीक है, उन्होंने एक सेट ऑफ रूलर्स को वहाँ पे बैठाया. हाँ, मानते हैं किंग इज़ द टॉप, उनका डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आखिरी है, लेकिन इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किंग को भी ये लोग ओवरथ्रो कर सकते हैं अगर सब एकजुट हो गए. ठीक है, तो किंग यहाँ पे सब कुछ नहीं है. A unique feature of the new feudal political structure was the personal nature of the bond that linked a lord and his vassal. An elaborate ceremony would be organized to establish this bond. उस बॉन्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए एक लॉर्ड और एक वैसल का एक ये लोग सेरेमनी भी रखते थे. ठीक है, जहाँ पे वैसल जो था वो वाव करता था टू सर्व द लॉर्ड all his life and simultaneously he also accepted the protection of the lord. प्रोटेक्शन कब ज़रूरी था, अनस्टेबल टाइम्स में ज़रूरी था. ठीक है, जब कोई दिक्कत आता था तो जो लॉर्ड्स थे वो अपने वेसल्स को प्रोटेक्ट करते थे. दिस मेनली इंक्लूडेड मिलिट्री सर्विसेज विच meant that the vessel had to provide a certain number of troops wherever required by the lord. At his turn the lord was expected to make a grant, usually in the form of land, of the fief or fiefdom from which the word feudalism is derived. तो लोग मिलिट्री सपोर्ट देते थे नाइट्स लोग और ये लोग उन लोगों को ज़मीन देते थे. किसी भी तरह का डील हो ही सकता था. द लॉर्ड्स यूज्ड टू मोबिलाइज
armed supporters in their own areas who had personal loyalty directly to him. With this armed strength, he would provide military support to the Lord whenever required. With this military power, the Lord also became complete masters of their own area and could not be challenged even by the state. ठीक है? So it gave them immense power also. This system of feudalism, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुमको किसी का सपोर्ट है, राइट? सो ये काफ़ी पावरफुल भी बना देता था लॉर्ड्स को भी एंड इवन नाइट्स को भी. नाइट्स भी लॉर्ड ही थे, सबसे लो कैटेगरी के थे, पर लॉर्ड्स ही थे. ठीक है, ओके, यहाँ तक ही कराते. इट्स ऑलमोस्ट 15 minutes. सो द लास्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट क्लास. ओके, सो प्लीज़ आस्क इफ़ यू हैव एनी डाउट्स.